Danani, who entered the industry a few years back, to the one who's sitting in front of me, क्या changes आए हो? I think I've grown a lot as an artist. Although I haven't changed in my core, I'm still the same person in my essence. मैं जो थी, मैं वही हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी. तलहा कभी रोशी नहीं कहता ना? एक दफ़ा बोला था. बोलेगा आगे जाके कभी? So how was meeting Ahad the first time? It was really nice. We actually, the first time we met was quite a while ago. अच्छा, you had met him before? हाँ, it was at some event. Ahad reserve mode में ही रहते हैं या अब खत्म हो चुका है? नहीं, अब तो we do have a lot of fun. Yeah. What was the first scene that you guys did together? Ooh, imagine the first scene we did was when I was drugged and he brought me home. Oh, but you think Roshi and Talha are compatible for each other? They're so opposite to each other. Opposites attract. Do you believe in that? I do. I wouldn't mind finding a partner who completes me in a way that they are what I'm not. Yeah? Do you think women get more hurt by rejection? ये gender का issue नहीं है, ये दिल का issue है. तो दिल तो जिसके पास है, जितना बड़ा है, उतनी बड़ी rejection, उतना बड़ा hurt. What is one thing that frustrates you that people assume about a young girl? Girls in our society, they're not trusted enough. You should trust your girls as much as you trust your boys. So do you discuss it with your sister, your mom? It's a round table conference for the five of us. You love someone, you love someone. उनके बच्चे हैं, नहीं हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं. There are limitations, there are red lines, 100%. लेकिन love is love. क्या? Is it Roshi और तलहा शादी की किडनैपिंग के पीछे कौन है? क्या शादी हो रही है? नहीं, कुछ नहीं है. कौन? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine. आज जो मेरी मेहमान हैं, जब भी उनसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है. एक बहुत मज़े की कैजुअल फ्रेंडली गपशप लगती है. लगता ही नहीं है कि इतने अरसे बाद मिल रहे हैं. और आजकल तो वो हमें बड़ा ना उन्होंने स्ट्रेस में डाला हुआ है. बहुत से क्वेश्चंस हैं कि रोशी क्या करेगी, रोशी माँ बाप को क्यों नहीं बता रही है, रोशी का क्या होगा, क्या तलहा की मोहब्बत उसे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी. वी आर ऑल लाइक सिटिंग लाइक दिस जब हम देख रहे होते हैं और हमें होता है कि किसी तरह रोशी को तलहा की मोहब्बत मिल जाए और रोशी के आंसू रुक जाएं, बिकॉज हमने रोशी को बहुत हंसते मुस्कुराते देखा है. तो येस, आपने सही गेस किया. मेरे साथ आज स्टूडियो में दानानी मुबीन है एंड लेट्स मीट हर एंड फाइंड आउट व्हाट्स बीन हैपनिंग इन हर लाइफ एंड रोशी का क्या होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? मैं ठीक ठाक. यू टेल मी. I'm good, alhamdulillah. It's always so nice to meet you. Likewise. When you messaged me ना late हो रहे थे, like should we reschedule? I was like नहीं भाई मुझे मिलना है, you know. I felt bad because already इतना late हो गया था, तो I didn't want you to wait anymore. नहीं, but you know हमारी मुलाकात because you're not in Karachi. Yeah. So I don't see you on events, you know. You're in Islamabad, मेरा इस्लामाबाद जाना होता नहीं है. So I don't get to meet you or see you. So I was like, no, I just want to see her and I want to tell her what a great job you're doing. Thank you so much. Ayat/Roshi. अच्छा, तलहा कभी रोशी नहीं कहता ना? एक दफ़ा बोला था. एक दफ़ा बोलेगा आगे जाके कभी? मुझे लगता है आज आधी चीज़ों पे दानानी will be doing this. I mean ये तो आपको देखना पड़ेगा. So how have you been? I've Since we been met great. last, you know, I think we did an Dadar interview, pe. I think. Oh, yes. Yeah. Almost 2 years ago. Yes, almost. जहाँ हम वो मुझे उस दिन ही याद आ रहा था कि बहुत घास खाई थी. thanks to खुशाल, you know. क्या मतलब हम क्या चीज़ें की थी ना हमने. God, yeah. और बकरियाँ उठाई थी या मुझे बकरियाँ याद आ रही थी that मैं देख रही हूँ and she went and उन्होंने उठा लिया. I'm like, oh okay, you know, you're so fearless. तो रोशी पे कैसी फीडबैक आ रही है? क्या it's crazy, नहीं? Yeah, alhamdulillah, Allah has been very, very kind. Because I genuinely, I put in a lot of effort. I put my heart and soul into this and not that I don't anyways, but I really I put in a lot of effort. Yeah. And I put my heart and soul into Roshi and it's मतलब बहुत खुशी होती है जब आप किसी चीज़ पे इतनी मेहनत करो और फिर आपको आगे से रिस्पॉन्स से 10-fold ज़्यादा आए एंड यू नो पीपल पिक अप व्हाट यू डूइंग एंड आप जो छोटी छोटी चीज़ें कैरेक्टर में ऐड करते हो वो लोग देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग. तो अभी जब बाहर जा रही हैं तो क्या लोग फैंस क्या कह रहे हैं? लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? पता है मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है एंड समथिंग दैट आई जेन्युइनली रियली एंजॉय with memes and mohabbats feedback is that अब जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे पकड़ के लोग pictures तो चलें that's something right but they start asking me like serious questions कि आपने ऐसा क्यों किया या सर तलहा ने ऐसा क्यों किया या अब क्या होगा या ऐसे क्यों हुआ you know which makes me feel like okay people are really invested. Yes. You know people are genuinely invested in the story, they want to know what's gonna happen. तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है कि लोग स्टोरी में बहुत इन्वेस्टेड है. That's for sure and I think
बहुत अरसे बाद एक स्टोरी आई है जिसमें एक लड़की हम देख रहे हैं जो यंग है, जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो एक टिपिकल किस्म की जो हमारे यहाँ ड्रामों में लड़की दिखाई जाती है ना, जिसका रोना धोना है, या वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ी की जा रही है, रो रही है तो रो ही जा रही है। रोशी इज़ नॉट लाइक दैट, उसकी बहुत सी उसकी पर्सनालिटी के मुझे लगता है लेयर्स हैं और साइड्स हैं, जो हमें जैसे जैसे ड्रामा आगे चलता गया हमें नज़र आते गए। और रिलेटेबिलिटी मुझे लगता है फॉर यंग गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा है। It is. तो रोल आया कैसे आपके पास? मुझे मोमना आंटी ने बुलाया था एंड शी वाज लाइक मैं कुछ लिखवा रही हूँ एंड आई सी यू इन इट। ओके। एंड फरहत आपा वाज राइटिंग इट एट दैट पॉइंट एंड शी वाज लाइक आई हैव यू इन माई माइंड एंड आई एम राइटिंग दिस थिंकिंग ऑफ यू, आई एम गेटिंग दिस रिटन थिंकिंग ऑफ यू। तो आई वाज लाइक ओके, आई वाज इंस्टेंटली ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड। इट वाज फरहत आपा इज़ एन इनक्रेडिबल राइटर। वो आपको नज़र ही आ रहा है जिस तरह की रोशी की लेयर्स जो अभी आपने बोली हैं, जो उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो आपको हर एपिसोड के साथ नज़र आएगी थ्रू द एंड। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया, आई वाज लाइक ओके, आई रेड द स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मम्मा को पढ़ाया, मम्मा लव्ड द स्क्रिप्ट एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड जो रोशी का कैरेक्टर है वो ऐसे ही लिखा हुआ था? डिड यू ऐड एनीथिंग इनटू इट? अली हसन के साथ बैठ के कुछ बात हुई जो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया, या बिल्कुल जैसा लिखा हुआ था वैसा ही आप लोगों ने किया है कुछ? देखिए, वन थिंग अबाउट फरहत आपा's राइटिंग इज़ दैट आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो आप कहो कि ये नहीं होना चाहिए या ये कुछ और होना चाहिए। शी इज़ थॉट एवरीथिंग थ्रू सो मच टू द पॉइंट दैट यूर लाइक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू, you know. उसमें the only thing that we've added is रोशी के कुछ mannerisms, which we made through Ali bhai, me and him sat down, we said okay इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे perceive करना है, इसकी chirpiness को ऐसे portray करना है, अगर वो serious है तो उसको ऐसे करना है, अगर वो because you know she's also really young, so when you're really young you also don't have a good grasp on your emotions, तो आपके रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं क्योंकि आप मैच्योर नहीं होते, आपके डिसीजंस बहुत डिफरेंट होते हैं, आप बहुत इनडिसाइसिव होते हो, आप काफ़ी इम्पल्सिव होते हो। तो वो सारी चीज़ें हमने बैठ के उसके मैनरिज्म्स में ज़रूर ऐड किए, बट स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने बोला हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या ये ऐसे है। नहीं, आई थिंक वी वेंट बाय द स्क्रिप्ट एंड वी जस्ट एडेड मैनरिज्म्स। ओके। सो लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि रोशी अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता रही है शारिक के बारे में? देखिए, I think Roshi, first of all, is closer to her Dada Jaan, her Dadi Jaan, her sister more than she is to her parents. And also, she's so young. And this situation that she's been put into, वो इतनी एक scary situation है कि आप अगर अपने आप को उस situation में डाल के सोचें तो आपको नहीं समझ आता कि एक इंसान कैसे react करे। एक बंदा है जिसने आपको हरास करने की कोशिश की थी, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आया है, आपको नहीं पता था कि वो है, अब वो आपका फियांसे बन के आपके साथ बैठा है और आपको बता रहा है कि आपकी कोई वीडियो है उसके पास विच यू डोंट नो कि क्या है, क्योंकि आप उस वक्त ड्रग थे, आप अपने सेंसेस में नहीं थे, तो आपको नहीं पता कि आप किस फॉर्म में थे, किस हालत में थे। यू नो, देयर इज़ मल्टीपल थिंग्स दैट एंड वो इतनी छोटी है, शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू डू। तो आई थिंक उसने अपने दिमाग में एक तो रोशी डिसीजन था कि आई एम गोना किल हिम। यस, हाँ, वो तो टिपिकल रोशी कि मैं तो छोड़ूंगी कि इसको तो मैं नहीं, तुमने मेरे साथ पंगा लिया, अब तो मैं छोड़ूंगी। हाँ, अब तो मतलब आई हैव टू टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स एंड अ बिट more mature decision was to contact the FIA. That was brilliant. Yeah, that was to so tell good. the girls कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, unfortunate है, but it's a reality. It's a reality of so many girls. True. अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, you have an organization that you can go to, you can have it fixed, you can find a solution for such an intense problem. तो एक वो route भी था, and then वो एक रोशी का जो एक immature impulsive उसका था कि मैं तो मारूंगी इसको। अब उसको नहीं पता कि वो मारने का सोच रही है, बट बिकॉज वो इतनी उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी इस लेवल की है कि उसने नहीं सोचा कि कैसे, क्यों, क्या होगा बाद में, कुछ उसने रेप्रिकॉशंस का नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं सोचा आगे क्या होगा। उसने बोला कि ये मैं बदला तो लेके ही छोड़ूंगी, एंड देन शी कॉन्टैक्टेड द FIA। तो आई थिंक इट वाज यू नो केम टुगेदर। आई थिंक थोड़ी उसकी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो स्ट्रगल कर रही है कि मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ, दूसरी तरफ ग्रोथ भी दिखा रहे हैं कि वो FIA को कांटेक्ट भी करी। वही मैं रोशी के कैरेक्टर की मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि रोशी का कैरेक्टर फ्रॉम day 1 to now हैज़ इवॉल्व्ड। ठीक है, उसकी हमने ग्रोथ देखी है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना रोशी का,
वो इंटैक्ट है। क्योंकि देखिए ग्रोथ आपकी मेंटली ग्रोथ होती है, लेकिन आप एक इंसान अलग नहीं बन जाते हैं, आप इंसान चेंज नहीं हो जाते। तो आप रोशी के उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं उसके फिर भी आपको शेड्स नज़र आते हैं, उसकी इम्पल्सिवनेस, उसकी इमेच्योरिटी के, ऑल्दो शी इज़ मेकिंग बेटर डिसीजंस बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी एपिसोड एंड शी इज़ ग्रोइंग विद एवरी इंस्टेंस दैट्स हैपनिंग इन हर लाइफ। लेकिन आप इंसान तो नहीं चेंज हो जाते ना, तो कहीं कहीं उसकी इम्पल्सिवनेस नज़र आती है। और हमें सबको थोड़ा सा शिकवा भी है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे क्यों चली गई है। तलहा ने, ठीक है तलहा बहुत हार्श था, वी आर विद यू, कि तलहा को इतना नहीं सुनाना चाहिए थी समंदर पे। आई थिंक तलहा बेचारे को काफ़ी सुनना पड़ रही है इस चीज़ पे। लेकिन ये भी क्यों हो रहा है कि वो बिल्कुल ही लाइक शारिक से शादी कर रही है, यू नो। देखिए अगेन उसकी एज ऐसी है, उसकी मेंटल मेच्योरिटी ऐसी दिखाई हुई है कि उसको अब है कि आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबाउंड, राइट, यू आर लाइक अब बस ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हर्ट हुई है, मुझे किसी ने इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया है, अब उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा। नाउ शी इज़ लाइक आई वांट टू टेक रिवेंज। और वो एज भी ऐसी है, आप इतने इम्पल्सिव होते हो, इतने इमेच्योर होते हो कि आप नहीं सोचते कि भाई शादी के बाद क्या होगा। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिसने मुझे हरास किया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, यू नो, और मैं उसका मर्डर का प्लान कर। तो आप सोचो ना, उसका there's still a lot of growth that has to happen, but she's still Roshi. Even though she's growing, at the end of the day she's still Roshi, so she will make such decisions. Your relationship with Mohit, you know, He's Abu my Huraira Dana. के साथ इतनी कोई natural है दाना नहीं, it was so lovely, like we see it and we can, मुझे लगता है कि वो बॉन्ड जो है ना ऑन स्क्रीन भी वो इतना अच्छा आया है that you immediately fall in love with the bond of you know Roshi and Mohit. How did you do that? हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना मज़े का है, we have so much fun off screen कि I think it just translates on screen. We have so much fun together. अपने इंटरव्यू भी किया है उसका, वो मतलब हम जनरली बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे वो बड़ा मज़ा है ना जब वो हॉस्पिटल भी जाती है, तो वो जो कंफर्ट है ना जिससे यूर इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम शी मीट्स हिम, वो उसको हग कर रही है, उसे किस कर रही है। हालांकि लोग थोड़ा सा ना झिझकते हैं, नहीं करते इस तरह। रोशी की लव लैंग्वेज भी है ना ये, रोशी की लव लैंग्वेज, शी लव्स टू हग, शी इज़ वेरी फिजिकली, you know, she loves to express through physical touch. तो and वो अबू हुरैरा तो वो तो ऑफ स्क्रीन भी आके मेरी गोद में बैठ जाते हैं और हम लोग ऐसे, मैं आपको भी कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, हमारा ना ऑफ स्क्रीन भी कंफर्ट लेवल उस तरह का है। बट आई वांट टू अप्रिशिएट यू बिकॉज हमने ऐसे बहुत से दूसरे सीन भी देखे हुए जहाँ पे कोई कैरेक्टर है विद अ यंगर यू नो कैरेक्टर और बच्चा, वो चीज़ आप हर बार नहीं लेकर आ सकते, जो नेचुरलनेस या जो एक बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, एंड आई थिंक दैट इज़ अ विनिंग फैक्टर ऑल्सो फॉर रोशी एंड द ड्रामा, क्योंकि हमें फील हो रहा है वो इमोशन। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे रोशी का मोहित के लिए प्यार जेन्युइन है। इट इज़ नॉट बिकॉज इट्स तलहा, इट्स नॉट बिकॉज शी वांट्स टू बी इन हिज लाइफ, she loves the kid. She saw the kid for who he was, what had happened to him. वो जो पहला ऑफिस का सीन था जब वो देखती है कि वो बोल नहीं सक रहा, कोई इशू है, that was where she connected with him. That is where her, you know, empath came out. उसने बोला कि ये बच्चा क्या है ऐसा इस बच्चे में, and then she wanted to genuinely connect with Mohit. और मुझे लगता है that also shows the purity of Roshi, you know, because जो बच्चों से connect कर जाए इस तरह, वो उस character की जो pureness है वो भी हमें नज़र आ रही है। So how was meeting Ahad the first time? It was really nice. We actually the first time we met was quite a while ago. अच्छा, you had met him before? हाँ, it was at some event that we met. Yeah, it was a while ago. अभी ड्रामे के लिए कैसे मुलाकात हुई? How did you guys meet? आहद तो बड़े ना रिजर्व से हैं, Yeah. तो क्या वो वैसे ही थे? You were also a little reserved because you are not like that, you know. तो how was the meeting? It was great. हमारी पहली मुलाकात सेट पे हुई है, सेट के लिए when we signed the project. It was really nice. We have great conversations. We have a lot of fun on set. We do a lot of fun activities. We play lots of games. Yeah, and it's really nice. We have a lot of fun. Yeah. अभी भी आहद रिजर्व मोड में ही रहते हैं या अब ख़त्म हो चुका है? नहीं, अब तो we do have a lot of fun. Yeah. Initially you, of course, and as you should, you know, one takes time to get to know the other person, and you know, like आपका slowly with time gradually comfort level adjust होता है. So it's nice. What was the first scene that you guys did together? Ooh, imagine the first scene we did was when I was drugged and he brought me home. Oh God, that was such a serious Yeah, scene. that was the first ever scene we shot. तो वो जब मैं आती हूँ घर, वो मुझे लेकर आ रहे होते हैं, वो जो हॉलवे का शॉट है, that was the first ever shot we took together. तो आप लोग बैठ के सीन बनाते थे या क्या? Yeah, I mean we would sit down. अगर कोई ऐसा intense scene होता था, we sit down, we think about it कि अच्छा इसको कैसे हम
बेटर कर सकते हैं. देन वी डू अ टेक एंड देन वी वी सिट एंड हम अली भाई से भी डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. सो या वी हैव लाइक दैट काइंड ऑफ. सॉफ्ट मोमेंट्स तो कम है दोनों के दरमियान, लड़ाइयाँ और झड़पें बड़ी ज़्यादा हैं लेकिन वो भी बड़े मज़े की हैं. लाइक वो एक जगह ना जब शी कम्स आउट ऑफ द ऑफिस और कुछ कहती है और वो फाइल होती है किसी चीज़ पे, देन ही ऑल्सो गेट्स वो भी सुनाता है जवाब में. तो वो भी वहाँ पे भी बड़ी ना एक नेचुरल दोनों की जो केमिस्ट्री है एक दूसरे से स्ट्राइक करने की, वो भी बड़ी अच्छी. यूजुअली जब लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ भी रहे हो ना तो वो उतना नेचुरल नहीं लगता है. वो लगता है कि हाँ ये एक्टिंग ही हो रही है जस्ट टू शो कि अच्छा ऑपोजिट्स हैं और इस तरह. बट आप दोनों की टाइमिंग डिलीवरी की वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी अच्छी जा रही है उसमें जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ना दोनों की. अच्छा टेल मी, सो दाना नीर who entered the industry few years back, day one, to the one who's sitting in front of me, क्या changes आए हैं उस वक्त से अब तक? Changes, I think I've grown a lot as an artist. And what about as a person? As a person, 100%. I have learned so much. I have grown so much. I have learned so much. काफ़ी कुछ सीखा. Although I haven't changed in my core, I'm still the same person in my essence. मतलब मेरा जो मैं जो थी मैं वही हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी. But of course आप प्रून होते हो टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, लोगों के साथ साथ. हर प्रोजेक्ट आपको कुछ नया सिखाता है, हर फ्रेंडशिप आपको कुछ नया सिखाती है. तो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको विजिबली अपने अंदर नज़र आती हैं या आसपास के लोग कहते हैं अच्छा अब तुम ऐसा करती हो पहले नहीं करती थी या वी सी दिस हैपनिंग इन यू एज अ पर्सन? I was much more extroverted when I was here, when I came. Okay. As in like I would hang around a lot. I would meet a lot of people. I think that is something that has changed dramatically. एक तो when I started off, I was living here. अब्बा की posting हैदराबाद में थी and I was doing my bachelor's here in Karachi, so I lived here. तो वो एक होता है when you're living in the same place, you hang out as well. तो now I live in Islamabad. तो वो उसकी वजह से भी एक है. And then also you realize that at the end of the day you can only rely on your inner circle and your core and your family. Yeah, true. तो with time आपको realize होता है, आप understand करते हो, you go through experiences, you go through friendships and then you realize okay it's good, you should know everyone, you should be cordial with everyone. आपको सबके साथ you should be friendly with everyone. But then there comes a point where you need to start reserving your energy and preserving your energy for the right people. And I think for me the right people are my inner circle, मेरी एक दो friends हैं, best friends बचपन की, and my family. So yeah, I think that is something that is changed. I think ये बहुत important lesson है. Yeah. बहुत important चीज़ क्योंकि आपको realize करना चाहिए आपकी energy बहुत important है. Seriously, and not everyone deserves your energy. True. Which is why you should keep it for the people who genuinely not just deserve it, the people who will cherish it. Yeah, true. The people who see you for who you are, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको genuinely as a person enjoy करते हैं, जो आपको दानानीर मुबीन की तरह नहीं देखते, वो आपको दानानीर मुबीन की तरह देखते हैं. You know? Do you think judgment is also one of the factors? Like I can completely relate to what you're saying. And मुझे लगता है कि वो जगह जहाँ से मैं उठूँ तो मुझे लगे कि ओह मैं क्यों यहाँ आई थी, या जजमेंट की चीज़ वहाँ पे हो रही हो ना. डू यू फील दैट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट यू फेस? जजमेंट तो 100%, लेकिन मेरा सिर्फ ये है एनर्जी. यू शुड ऑलवेज बी अराउंड गुड एनर्जी. या ट्रू. और आपको मेरी पॉजिटिविटी आए ना. देखिए अगर आप कहीं से उठ के जा रहे हैं ना तो आपकी बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए कि यार I want to go home बस. Yes, I know. ये नहीं होना चाहिए. मैंने Netflix पे शो क्यों नहीं देखा, मैं यहाँ क्यों आ गई, या मैंने कॉल पे किसी और से बात क्यों नहीं कर ली. When you leave a setting, when you leave the people, when you leave a group or whoever you're with, you should feel good. You should leave with the good feeling. You should leave with a positive feeling. आपकी energy drain नहीं होनी चाहिए. आप internally you should feel good. अच्छा, 2 सवाल है, मैं दोनों को एक साथ ही करके पूछ रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं अलहदा पूछूंगी तो रेपिटेटिव भी हो सकते हैं. इन द सेंस के रिमेंबर जब हम शुरू में हमारा पहला इंटरव्यू था तो इवन देन यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ पीपल थिंक दैट आप एक वीडियो की वजह से आ गई हैं और अनफेयर आपको एडवांटेज मिल रहा है या एक्टिंग के स्किल्स नहीं हैं. दिस वॉज अ कॉन्वर्सेशन वी हैड. ऑल्सो आई फील दैट
शुरू में यू स्टिल आर मेकिंग इट, बट शुरू में बहुत ज़्यादा फ़नी कंटेंट या थोड़ा सा शरारती किस्म की चीज़ें बन रही थी. नाउ यू हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें मोहब्बत गुमशुदा मेरी एंड ये वाला ड्रामा भी एंड सब कुछ, तो अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है. सो डू यू फील दैट पीपल वर नॉट टेकिंग यू सीरियसली बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, एंड हैज़ दिस चेंज्ड बोथ द थिंग्स ओवर टाइम? देखिए, आई मीन it's very common for people to not take people who come from a viral video seriously, right? क्योंकि Okay. आपको you don't know who they are, you don't know what they can do. आपने सिर्फ एक वीडियो देखी है और आपने उस वीडियो के थ्रू जजमेंट किया है. ठीक है, आपको नहीं पता कि वो इंसान में टैलेंट है नहीं है, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनकी स्टोरी नहीं पता आपको. तो फर्स्ट जजमेंट वो होती है, बट देन आई थिंक जब आप उनका काम देखते हो, जब आप देखते हो कि अच्छा दिस इज़ व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, उन्होंने आपको थ्रू टाइम एंड थ्रू देयर प्रोजेक्ट्स एंड देयर वर्क उन्होंने आपको बताया है कि आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हो. तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है टाइम के साथ. एंड फॉर मी आई थिंक आई डोंट फेस दैट एनी मोर. क्योंकि मतलब अगर लोग देखते हैं, जेन्युइनली देखते हैं आपका काम और अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल कि आप कहो कि हाँ ठीक है, वो बहाना बन गया एक वीडियो का और वो हुआ. वो तो रास्ता था ना आने का. यू वर मेंट टू बी कमिंग दिस साइड. तो आई थिंक दैट्स माय पर्सपेक्टिव कि आई फील दैट वाज वो एक रास्ता था, बिकॉज आई हैड टू बी हियर. और जिस लाइफ से मैं हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था, ना हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, ना मुझे काफ़ी टाइम तक परमिशन थी. तो अगर ये ना होता तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू एक्सप्लोर व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. एंड यू नो लाइक समटाइम्स आपका लम या आपको कोई बहाना दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, आई वांट यू टू गो समवेयर एंड आई विल मेक दिस एन एक्सक्यूज. तो अब आई थिंक पीपल आई थिंक दे नो, बट दे विल गेट टू नो विद टाइम. नहीं, बट पता तो चल रहा होगा ना, लोग जैसे ट्रीट कर रहे हैं, लोग जैसे कमेंट कर रहे हैं, वो तो फर्क साफ मुझे तो लगता है बहुत चेंज हो गया होगा. आई थिंक ये मीम से मोहब्बत तो अभी आया, उससे पहले वेरी फिल्मी था, लेकिन उससे पहले मोहब्बत गुमशुदा मेरी में क्या ज़बरदस्त, यू नो, इट वाज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड योर परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग. तो आई थिंक वही सब लोगों को एक प्रूफ मिल गया था दैट या यू कैन, इवन दो सिनफ़े आहन में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देयर वर सो मेनी एस्पेक्ट्स. और थोड़ा सा आपको एक नज़र आता है ना कि रेंज है, एक रेंज है बिल्कुल. यू नो, आई स्टिल रिमेंबर दैट बारिश वाला सीन, यू नो, बिटवीन यू एंड खुशहाल, एंड दैट आई लव्ड इट. आई वाज लाइक कितना अच्छा शूट किया हुआ है. सो बट अभी यू वर सेइंग कि खुद को भी नहीं पता होता कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. डू यू नाउ डज इट हिट यू समटाइम्स बिकॉज यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर कि ओह गॉड मैं तो ये भी कर सकती हूँ, अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, यू नो. डज इट फील सरियल? ये कैसा होता है? डू यू समटाइम्स सिट या हिट करती है थॉट आके? समटाइम्स आई डोंट थिंक अबाउट इट मच, बिकॉज मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोग इस बारे में ज़्यादा सोचने नहीं देते, बिकॉज देर लाइक अपने आप को सीरियसली नहीं लेना. आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली एंड आई थिंक नो वन शुड. बट समटाइम्स आई डू लाइक व्हाट आई डू. यू नो, समटाइम्स आई थिंक ओके, आई मीन अच्छा किया है, you know, and then it's basically motivation. अच्छा, if I can do this, then I feel like I can do more and I can do better. So it's just a form of motivation for me कि अच्छा ये अच्छा लगा है, feel good सी situation है कि आपने देखा है कि आपने एक सीन अच्छा किया है, तो you're like okay, I can do this, I'm capable of this, maybe I can do more, I can do better. So it just pushes me to explore more about my art. मुझे तो ऐसा होता है जब कभी कभी मैं अच्छा सवाल भी पूछ रही हूँ तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैंने पूछ लिया, ओह वाओ नाइस. Yeah, sometimes you do end up surprising yourself. Yeah, that's the feeling that I'm talking about कि you like oh god I didn't know that. अच्छा I could, and it's not meant to be कि आपको गरूर होता है, प्राउड होता है, आप खुद अपने ऊपर हैरान हो रहे हो. Yeah, you surprise yourself. You surprise yourself. मैं ये कर सकती हूँ. And that exactly then the second part comes that it motivates you. कि oh if I can do this that means I have the potential. मैं इससे ज़्यादा भी अपने आप को पुश कर सकती हूँ, you know. तो इसलिए मैं पूछी थी because you said ना कि मैं तो कभी करना भी नहीं चाहती थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं. अब स्क्रिप्ट्स जो आ रहे हैं, are you happy with them या अभी भी मुश्किल है? देखिए, अच्छा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है. हर किसी के लिए एक अच्छा स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट होगा. किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा. फॉर मी आई जेन्युइनली थिंक कि
now I want to do something that scares me. जो मैं पढ़ूँ और मैं कहूँ कि कैसे करूँगी मैं? ये कैसे होगा? Yeah. You know, because I want to push myself as an actor. I want to see what I can do. I want to push my range. I want to explore this art. Yeah. क्योंकि अब मुझे बड़ा मज़ा आता है करते हुए. अब वो लग गया है ना, वो कहते हैं ना, हाँ. लत पड़ गई. Yeah, बड़ा मतलब it's a very rewarding process. It's very rewarding. मतलब एक तो आपको खुद करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो आपने अगर छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई होती है ना, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है ना, और रिकग्निशन मिल रही होती है ना आपके काम की. मुझे लगता है इस फील्ड में जितनी अगर आपको बैशिंग मिले किसी वजह से, उतना ही अगर आप अच्छा काम करो तो आपकी रिकग्निशन और अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ डेफिनेटली अ मोटिवेटिंग फैक्टर. एंड देखिए, विद दिस line of work you have the power to touch people's lives. Yes. You have the power to penetrate people's hearts. Yeah, and teach them something also. And change perspectives. Definitely. Through storytelling. Yeah. And you know, it's बहुत बड़ी responsibility है. Yeah. बिल्कुल. You know, तो back to the question. Next thing that I want to do is something that scares me. So अभी आप responsibility की बात करी थी. Is it important for you कि whatever you do, a character or a project that should have responsible content, even though it might not have a message per se, you know? देखिए, आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका हर काम कोई मैसेज बेस्ड हो, कोई आप प्रोपेगेंडा या कोई आपने कुछ. This is a pure form of entertainment, and within which you can teach, you can make people learn, you can help people understand, you can change perspectives. But at the end of the day, it is entertainment. True. Right? So you need to keep a good balance of the both. But one thing, you have to be responsible. Responsibly script choose करना बहुत important है, and especially for me. मैं ये नहीं कहती कि मेरा हर project में कुछ ना कुछ होना चाहिए. I would love, and alhamdulillah that has been the case for all the projects that I have done so far. But अगर नहीं भी है कोई message या if there's no certain thing that I'm teaching someone, but it still has to be responsible. I want people to, I don't want to mislead anyone or misguide anyone, because it's a big responsibility. Because when people watch you, especially now, when people come to me and छोटी बच्चियाँ like Roshi, you know, I know. वो एक बहुत अच्छी feeling है, but आपको होता है कि ओ आपको लोग देख रहे हैं और आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लोग follow कर रहे हैं. You have to be very responsible with what you put out on the screen. That's so true, and I'm so glad you recognize it, because ये समझना ज़रूरी है. और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जिसका भी ये विजन होता है ना, it makes a difference in the person's career and overall, you know, perspective also. But रोशी की बहुत बड़ी following है बच्चियों में भी, लड़कियों में भी, है ना? Surprising. Yeah, it's crazy. Surprise you कि कितनी छोटे बच्चे भी देख रहे हैं और कितना enjoy कर रहे हैं. मैं तो मतलब मुझे when episode 3 came out and अभी मतलब this character was slowly growing on people. 2-3 छोटे बच्चे आए हैं, they're like रोशी आप यहाँ क्या करी? तो वहाँ मुझे था कि I think वो पता नहीं नाम भी थोड़ा सा कोई recall value, I don't know what it is, but it's the... But शुरू का तो कैरेक्टर था भी ऐसा ना, जिससे मतलब यंग लोग, थोड़ा सा फनी था, वो थोड़ी बिल्कुल बेपरवाह वाली हरकतें करी थी, तो उससे ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे थे, स्पेशली आई थिंक यंगर जो लोग होंगे. तो वो तो था जो मुझे समझ आ रही है. फिर उसके साथ ग्रोथ हुई, तो वो तो आपने फैंस बना लिए थे और वो साथ साथ ग्रो कर रहे होंगे ना. बट यू थिंक रोशी एंड तलहा आर compatible for each other? They are so opposite to each other, you know. Opposites attract. Do you believe in that? I do. Opposites attract in love? I do. देखिए, I wouldn't mind finding a partner who completes me in a way that they are what I'm not. Okay. Wouldn't it scare you? What if that opposite is not what you want? Then I won't be with that person. Then I'll find someone else. Okay. So I do genuinely believe that they're compatible. And see, where there is love, where there is respect, when you respect someone enough to gel in together, when you love them enough कि you morph into one version of two. You know, that person brings their traits, you bring your own traits, and you become one. And it's just a beautiful, the synergy is beautiful, you know. मतलब अगर रोशी एक अपनी एक chirpiness, liveliness, color लेकर आ रही है, तलहा
is bringing his maturity, he's bringing his wisdom, his life, you know, so it's a beautiful harmony of the both. So I do think they're compatible. एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी ड्रामे की कि द लव इंटरेस्ट दे बोथ हैव इन ईच अदर, वो उनको तलहा को इतना ज़्यादा नहीं इस पॉइंट पे, लेकिन रोशी को तो डेफिनेटली इट हैज़ मेड अ बेटर पर्सन, लाइक उसको यू नो सीरियसनेस आ गई, थोड़ा वो पढ़ाई की तरफ देखना शुरू हो गई, अपना करियर का सोच रही थी। एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लव या जो भी आपकी ज़िंदगी का इंसान हो वो आपको आपका बेहतर वर्जन बनाए। I think ये बहुत important चीज़ है. For me, I would love to be with the person who pushes me to be my best version. Because आपने पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, तो अगर आप stagnant हो गए, अगर आप एक point पे आके growth आपकी रुक गई और आपका partner आपको motivate नहीं कर रहा, तो आपने अपना potential ज़ाया कर दिया. So you know, you should be with the person who pushes you to be the best version of yourself. And I think that's what both the parties are doing for each other. डेफिनेटली इसमें तो मुझे ये बड़ी मुझे हाईलाइट अच्छी लगी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड डू यू फील दैट मोहब्बत में कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं हो तो देन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मोहब्बत में नहीं, आपकी कोई भी रिलेशनशिप है ज़िंदगी में, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड येस, इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, then it is hard for someone else to respect you, right? So the first thing is you should respect and love yourself. But ये बट आया है बट आई एम वेटिंग फॉर के बट के बाद क्या आ रहा है? But if there is someone in your life who genuinely loves you, there will be points when you don't respect yourself, but they will for you. That is, मैं थोड़ा सा idealistic बात करती हूँ when it comes to love, because I genuinely do believe in the purest form of love, and I think the purest form of love is if I'm being immature, if I'm being, you know, if I'm being reckless, I would love for the other person, because we're human at the end of the day, right? हम लोग मतलब सब mistakes करते हैं, it's fine, you fumble at times, right? तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको देखे कि यार ये क्या पागलपन कर रही है, बट दे स्टिल लव यू सो मच दैट दे डोंट केयर, they love you for who you are, they love for you all for your who you are, imperfections, for you your know, imperfections, for the goods, for the bads, for the worst, for the best, you know. So hey, yes, self respect is very very important, and you should know when to walk away, which Roshi did, you know, because usko time and time again she was hurt. You know, the beach wasn't the first time uski self respect hurt हुई है, but because she loved him so much, and वो genuinely बहुत प्यार करती थी, you know, तो उसने बोला कि नहीं, it's okay, but then it came to a point where she was like, अब नहीं, और इतना नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेक कर दिया तलहा ने ना, and like her spirit broke, उसकी ज़ात टूट गई थी. That's true. मतलब उस पॉइंट के बाद तो रोशी का अगर वो ना करती तो अच्छा नहीं होता. I think ये बहुत important lesson दिया था. बुरा एक मैसेज चला जाता कि आप करो नहीं, ठीक है. हमेशा रिलेशनशिप्स अगर आपने लॉन्ग टर्म चलाने हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा इस पॉइंट के बाद अब और नहीं हो सकता. तो रोशी को जब लगा कि यार ये तो बहुत हो गया, शी वॉक्ड अवे. और मुझे ना ये बात भी बड़ी अच्छी लगी थी कि जब वो आता है स्कूल में उससे बात करने की, तुम शारिक से शादी नहीं करो, एंड इवन कन्फेसेस हिज लव फॉर हर, शी डजंट गिव इन द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन था लड़कियों के लिए. मुझे लगता है कि यार ये तो नहीं कि जब अपनी मर्जी नहीं थी तो बोला कि नहीं, अब यू आर रेडी तो लड़की तैयार है. आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज वो दिया ना ड्रामे में. फरताप है ना, यू नो, लाइक वो कोई भी पता है, शी लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, यू नो, शी मेक्स श्योर दैट शी ties everything very well together. और वहाँ पे अगर वो गिवन कर जाती तो you're like हाँ नहीं, बहुत जल्दी होता. अभी तो ये था और एकदम से नहीं, she didn't give in. She was like no, मेरे साथ बुरा हुआ है, और अगर वो अभी मुझे कुछ कह रहे, उसने तो बिलीव ही नहीं किया ना, उसने तो मोहब्बत वाली बात बिलीव ही नहीं की. उसने बोला है कि आप तो मुझे शारिक से शादी करने से रोकने के लिए ये बोल रहे हैं. So she didn't even believe him. तो गिव इन करना तो दूर की बात, you know, that's step 2. She didn't believe that he actually did love her. She thought he was lying so that she wouldn't marry Sharik. True. Do you think women get more hurt by rejection? लड़कियाँ ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं अगर मोहब्बत में रिजेक्शन मिले तो? मुझे नहीं लगता कि ये जेंडर का इशू बेस्ड है. ओके, मुझे नहीं लगता. हर इंसान अपनी तरह फील करता है,
तो कहीं कहीं मर्दों को भी बहुत रिजेक्शन हर्ट करती है, कहीं औरतों को बहुत हर्ट करती है। तो ये जेंडर का इशू नहीं है, ये दिल का इशू है। तो दिल तो जिसके पास है, जितना बड़ा है उतनी बड़ी रिजेक्शन, उतना बड़ा हर्ट, और जितना छोटा है उतनी कम हर्ट। बट ये जो इस जैसा रोशी का एक्सट्रीम रिएक्शन है, मुझे लगता है वो मैंने काफ़ी लड़कियों में देखा हुआ है। देखिए, ये इम्पल्सिवनेस है, ये Impulsiveness इमेच्योरिटी है। रियली आई वुड से कि वो जब जैसे वो बोला ना आपने कि स्पिरिट टूट गया उसका, जब वो लड़की का स्पिरिट टूट जाए ना, क्योंकि वो रोशी की तरह लड़की कर रही होती है, गिवन कर रही होती है, गिवन कर रही होती है, बट जब वो चीज़ नहीं मिलती है एंड शी लाइक ओके नाउ इट्स इनफ, नाउ यू क्रॉस द लाइन, फिर जो वो लड़की टूटती है ना, मुझे लगता है उसका जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। मर्दों पे में मुझे लगता है परसेंटेज शायद वो कम होती है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मे बी मैन आर कंडीशनड इन अ वे कि वो उनको अपनी फीलिंग्स से इतना इन टच कभी कराया नहीं जाता कि वो उतना डीपली फील करें। हो भी सकता है, यस। You know, especially in our society, men are their emotions are suppressed. And they also कि don't आपने mind those- रोना नहीं है, हाँ। ये नहीं करना, वो नहीं करना, फील नहीं करना, you're a man, you should man up. ठीक है, आई है, दूसरी आ जाएगी, there's Yes, exactly. lots of fish in the sea. हाँ। You know, तुम्हें क्या कमी है? हाँ, तुम्हें क्या हाँ। कमी है, या तुम मतलब तुम मर्द हो, तुम रो रहे हो उसके पीछे, you know, मतलब ये बचपन से कंडीशनिंग होती है। तो आई थिंक एट अ पॉइंट आप कहते हो कि हाँ, मतलब आपको एक ही तरीका आता है सोचने का, you know, whereas women, we're not like that. It's opposite actually. We're उससे ज़्यादा yeah. you're made to feel more, We're you know. made to feel more responsible, not just for our feelings but for other people's feelings. People, everyone around us, we're responsible for everyone else's feelings. तो वो बचपन से जो contrast है ना, एक growth का, एक upbringing का, एक thought का, तो I think उसमें yes translate होता है कि men jump out quickly and compared to women because they're conditioned so. You know, And it's not like they can't. It's not like they're incapable of it. It's just that they're conditioned like that. True. And they're not encouraged कि अपनी feelings जो हैं वो Not at all. express कर सकें. Yeah, मतलब I genuinely do believe that it's changing with our generation. But before that, हमारे तो मतलब आप you would never see men crying. और मुझे पता है क्या डर लगता है, मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस रखना है ना, कि डैमेज को रिकवर भी करें, क्योर भी करें, लेकिन लाइन क्रॉस ना कर जाए कि दूसरी तरह का डैमेज हो जाए। देखिए, You know, it's called वो मेंटेन करना। It's called the pendulum effect. Yeah. The pendulum will swing from left So you to think right. that's gonna happen? And it's swinging. It was here, now it's going here. So it will cause damage because that's the natural course of life. That's learning. क्योंकि वो that's रिएक्शन में evolution. लड़कियां दूसरी तरफ जाएंगी, देखिए, वो जब ज़्यादा आप रिबेल स्प्रिंग करेंगी। को ना बड़े अरसे तक दबा के रखते हैं और आप एकदम से हाथ उठाते हैं, तो वो स्प्रिंग स्पाइरल करता है। There's no direction. It doesn't know where to go, how to behave. तो वही होता है, and that goes with anything in life. Yeah. तो वो अभी पेंडुलम क्योंकि इतना एक्सट्रीम पे था, तो अब वो जब स्विंग कर रहा है तो वो यहाँ आते आते टाइम लगेगा ना, अभी वो इधर है, अभी वो जा रहा है उधर, एंड कोलैटरल डैमेज होगा, डेफिनेटली होगा, बट that's so sad. that's life. Yeah. It is very sad, but to come here ये ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है. What is one thing that frustrates you that people assume about a young girl? I think what really frustrates me, especially for girls in our society, is that they're not trusted enough. Okay. You know, whereas जब आप बोलते हो ना कि ओ ये देखो बुरी ड्राइवर है ना, बुरा ड्राइव कर रहा है कोई, लड़की होगी, हाँ. आप ये नहीं सोचते कि लड़के को 14 साल की उम्र में गाड़ी मिल गई और लड़की को 25 साल की उम्र में पहली दफ़ा गाड़ी चलाने को मिल रही है, तो तब भी वो अकेले नहीं जा सकती, और तब भी वो अकेले नहीं जा सकती, वो भाई बाबा किसी ना किसी के साथ हाँ जाएगी. तो मेरा सिर्फ ये है कि यू शुड ट्रस्ट योर गर्ल्स एज मच एज यू ट्रस्ट योर बॉयज़. जो आपके लड़के कर सकते हैं वो आपकी लड़कियां उतना ही अच्छा कर सकती हैं, इफ़ नॉट बेटर. सो वन थिंग इज़ गिव देम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट योर गर्ल्स मोर, गिव देम विंग्स. उनके पास आसमान है, आप उनको उड़ने दें, उनको आप विंग्स दें ताकि वो उड़ें. यू नो, दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट मोर पेरेंट्स टू रियलाइज़ कि आप अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, उनको कहें कि आप करो, हम आपके पीछे हैं, लाइक माई पेरेंट्स डिड. Even though it was very scary for them because हम एक military background से हैं, कोई connection नहीं to the media industry, and then this happened, but my parents never once held me back. उन्होंने boundaries ज़रूर बनाई कि आपने इससे step out नहीं करना, but they never held me back from what I wanted to do, and I am here only because of their trust. Of course. अगर वो मुझे confidence ना देते, अगर वो मुझे trust ना करते, I would have never been here.
तो आई वांट मोर पेरेंट्स टू ट्रस्ट देयर डॉटर्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको आप स्किल्स दें, सिखाएं उनको स्किल्स, लेट देम गो आउट, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ. ये ना कहें कि जब शादी हो जाए तब एंजॉय करना, अपने मियाँ के साथ एंजॉय करना. आप उनको मेक देम एन इंडिविजुअल एंटिटी फर्स्ट. उनको एक आइडेंटिटी दें, उनको एक पहचान दें, और फिर उनको किसी के साथ शादी करने दें, ताकि वो जब जाएं तो एटलीस्ट दैट देयर ओन पर्सन. They know what they want, they know what they can do, they know what they're capable of, they know their rights, they know what the right thing is, they can stand for what's right, and then they go to someone. So I think you should trust your girls more. ये अच्छी बात आपने बोली है. It's very true. वो ड्राइविंग वाली बात तो पॉइंट ऑन, यू नो, बिल्कुल सही. तो ये जो लाइफ है इतनी ही ग्लैमरस, इतनी ही पीसफुल है जैसी बाहर से नज़र आती है, फॉर अ यंग एक्ट्रेस और फॉर अ यंग गर्ल हु इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, या कहीं मेंटल हेल्थ टोल हो रहा है जो हम यहाँ बैठ के रिकग्नाइज नहीं कर सकते? एंड वुड यू वांट टू जस्ट कॉशन और गाइड एनीवन हु इज़ लिसनिंग टू यू एंड मे बी ऑन द सेम पाथ और जर्नी? I mean, it's a great life, but it's not as glamorous as it looks. मतलब हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है. हर किसी का एंट्री का तरीका डिफरेंट है, हर किसी का पाथ डिफरेंट है, हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट है. फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह माई एक्सपीरियंसेस सो फार हैव बीन इनक्रेडिबल. बट आई थिंक मुझे नहीं लगता मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि मैं एडवाइस कर सकूँ, बिकॉज मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ, एंड आई एम स्टिल न्यू टू दिस, एंड आई एम स्टिल लर्निंग विद एवरी प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग. लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि आपको स्क्रिप्ट्स मेरे रिस्पॉन्सिबली चूज़ करने चाहिए. लेकिन फिर वही मैं मतलब मेरा एक कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ इन माई हेड, वो भी एक प्रिविलेज स्टैंड पॉइंट है ना. सम पीपल it is their bread and butter, and they don't have an option to choose responsibly. They just have to do what's coming their way, good or bad, you know. True. तो वो भी एक है. For some people it's a form of expression, it's a form of art. For some people it's a 9 to 5 job. For some people it's a job. तो आप किस तरह किसी को जज कर सकते हैं? आप क्या है वो सांचा जिसमें आप किसी को डाल के जज कर सकते हैं कि ये है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एक्टर, और इसमें जो फॉल नहीं करेगा वो एक अच्छा एक्टर नहीं है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते. ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर कोई अपने डिफरेंट लेवल पे भी कर रहा होता है चीज़ ना. हर किसी का टैलेंट भी बहुत डिफरेंट होता है. somebody might be really good at emotional stuff, somebody might be good at, you know, something comic. But अगर mental health के पॉइंट से देखा जाए तो what are the factors that could take a toll on you? देखिए, जब आपको कुछ चीज़ें जो बड़ी ऑब्वियस सी हैं, जब आपको हेट मिलता है, जब आप ट्रोल होते हो, जब आपको हेट कमेंट्स आते हैं, जब लोग आपके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, आपके क्राफ्ट के बारे में नेगेटिवली बात करते हैं, वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है क्योंकि आप इंसान हो और आप रोबोट नहीं हो. वो आपको करेगी. लेकिन उसको आप किस तरह हैंडल करते हो, मूविंग फॉरवर्ड आप क्या करते हो? दीज पीपल हु आपको ना ऑल्सो यू हैव टू फिल्टर आउट बेसलेस कॉमेंट्स, बेसलेस हेट and constructive criticism. True. I'm always on the lookout for constructive criticism. अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि दानिश मुझे लगता है आपने इसको जो ऐसे किया है ना, अगर आप इसको ऐसे करते तो इसका इम्पैक्ट ऐसे आता, I will listen to it wholeheartedly. लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि आपने तो ये क्या किया है और ये तो ऐसे है और वो तो वैसे है और आपने ऐसे क्यों किया और वैसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था, you know, उसका कोई लॉजिक नहीं है. आप you're just speaking for the sake of speaking. You're commenting for the sake of people liking your comment and it being on the top. And people, it starts this, you know, like spiral of people commenting bad and bad and bad and bad because everyone's enjoying, you know. True. तो वो नहीं, वो आपकी एक steel wall होनी चाहिए which should never be penetrated, but always be on the lookout for feedback, for constructive criticism, but do good work, man. Is it also a pressure to always look nice? To always be this perfect, you know, in perfect attire, perfect look and everything, and post, हाँ? नहीं है. You're not taking it, है नहीं है, you're not taking it. है, I'm not taking it. Because देखिए, on screen तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि there have been multiple times on screen जब बाल कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, I don't care. If I look nice or not, if I'm doing my craft well. वो तो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो बस. अगर आपका कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है कि आपने नो मेकअप में होना है, आपने नो मेकअप में होना है. आपको अपनी शक्ल अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, आपका कैरेक्टर डिमांड करे, you have to do it. True. This is what pushes you to your full potential as an actor. कि अगर आपको अपनी शक्ल नहीं भी पसंद ना मेकअप के बगैर, आपने बोलना है कि नहीं,
मेरा आर्ट मुझसे ये डिमांड कर रहा है, मैंने करना है। एंड यही जब आप इन सारे शैकल्स और इन सारे चेन से निकल के टूट तोड़ के सब कुछ बाहर आते हो ना, तो वो जो एक फीलिंग है ना कि यार ये तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, शक्ल कैसी लग रही है, आई एम दिस कैरेक्टर एंड आई एम सो एनग्रोस्ड इन दिस कैरेक्टर। मैं ये कैरेक्टर इतना अब्जॉर्ब कर चुकी हूँ कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, you know. And that is Very beautiful. liberating, It I'm is sure. so liberating. It is so freeing as a person. तो मुझे तो सिर्फ ये स्क्रीन पे तो कभी भी नहीं, बट यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी मुझे ये प्रेशर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे एंड बी प्रेजेंटेबल एंड यू नो वेयर सर्टेन क्लोथ्स। मैं तो नाइट सूट में बाहर आ जाती हूँ एंड देन मम्मा इज लाइक बेटा क्या मतलब आप कपड़े तो ढंग के पहने। मम्मा नहीं, बट शी इज लाइक नो, अब बाहर जा रही हैं, लुक प्रेजेंटेबल। तो कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। बट वो रियल लाइफ में आई डोंट टेक प्रेशर। मैं रियल लाइफ में आई वांट टू बी हु आई एम, आई वांट टू डू व्हाट आई एम कंफर्टेबल डूइंग। आई डोंट वांट टू टेक एनी प्रेशर ऑफ looking a certain way and being a certain way. Personal life mein though I do not care. I am who I am with the people I love and I couldn't care less about anything. Do you think that Roshi's love can heal Talha? Can love really heal someone? ये philosophy सही है या you think कि पहले इंसान को खुद heal होना चाहिए फिर जाके किसी से मोहब्बत करे? देखिए, आपकी हैप्पीनेस या आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली आप किसी और पे नहीं डाल सकते। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हीलिंग। लेकिन ये जो बट और लेकिन आता है ना, ये बड़े मज़े का है। लेकिन अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपको उस जर्नी में हेल्प कर सकता है, या आप उसको उस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, यही तो मोहब्बत है ना। यही बेलॉस मोहब्बत है कि आप किसी को देखें और आप कहें आई लव यू फॉर द वे यू आर एंड आई वॉन्ट यू फॉर द वे यू आर, आई विल हेल्प यू बी बेटर, आई विल हेल्प यू डू बेटर, आई सी द क्रैक्स but I see the light shining through those cracks and I want to bring that light out. अगर तो वो बंदा अपनी already उस journey पे है, you go and you fuel that journey, you help that person. Love is very powerful. That's true. मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो बहुत बहुत ताकतवर है। कुछ ऐसे पहले ना जो ड्रामे और फिल्म्स होती थी या हमारे नॉवेल्स भी होते थे, वो हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते थे कि वो लड़की है, वो जाके एक टूटे हुए मर्द को ना कंप्लीट कर देती है अपनी मोहब्बत से। आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस था वो बड़ा हमारे यहाँ एक जनरेशन के लिए डैमेजिंग था, दैट दिस आइडिया ऑफ सेविंग समवन एट योर ओन कॉस्ट और एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, वो बहुत हमारे यहाँ बहुत सॉलिड था, बहुत से ड्रामों में नज़र आता था। व्हेन एज यू गाइज आर ग्रोइंग अप, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, आप लोगों को इस तरह की थॉट प्रोसेस मिली सुनने को, देखने को, आप लोग एक्सपोज हुए, या यू गाइज हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस? नहीं, मेरे अम्मा अब्बा ने कभी ये नहीं बोला कि बॉब द बिल्डर बन जाओ, यू नो। एंड ऑल्सो देखिए, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने रिकग्नाइज़ करना है कि आपकी कहाँ क्या आपके लैकिंग्स हैं, कहाँ पे आप ज़िंदगी में बेहतर हो सकते हैं। कोई आता है आपको मदद करता है, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन हमने तो उसको हीरोइज्म थोड़ा सा बना दिया था ना लड़कियों के लिए। देखिए, ये जो एक सेवियर मेंटालिटी है ना कि मैंने जाके ये जो ऐसा सैक्रिफाइस का कोई रिवॉर्ड नहीं है, इस वाली सैक्रिफाइस की कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा कि आपने अपनी ज़ात को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और इंसान को बेहतर कर दिया। इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, इसका कोई अवार्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अल्लाह मियाँ भी बोलते हैं फर्स्ट यू एंड देन एवरीवन एल्स, because you can't pour from an empty cup. अगर आप अपने आप को खाली करके किसी और को भर देंगे and at the end of the day you remain an empty vessel, उसका क्या फ़ायदा? हाँ, आपने प्यार कर दिया, आपने दे दिया सब कुछ किसी और को, but at what cost? फिर आपके पास खुद कुछ नहीं है, आप खुद कुछ नहीं है। तो पहले अपने आप को इतना भर दें कि अगर आप डाल भी दें किसी में तो आप फिर भी फुल लें, या अगर आप कम भी होता है तो इतना नहीं कि आप ख़त्म हो जाएं, you know. But first yourself, you make yourself, you build yourself, you strengthen yourself, and then फिर आप दो, give out in the world. So सेट पे से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, कोई वाक़या हुआ, कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ सेट पे? फ़नी इंसिडेंट हमारे सेट पे तो ये है कि मैं और मोहित तो हम सबका दिमाग खाते रहते हैं।
मैंने सुना आप लोग गाने भी बड़े गाते थे दोनों। ओह हो गाने और पता नहीं हम क्या, ब्रेन रॉट मैं और वो क्रॉनिकली ऑनलाइन। और हम लोग वी टॉक इन मीम्स, वी यू नो, बड़ा इट्स सो मच फन। एंड मैं एक अरशद महमूद साहब, व्हाट एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग। उनसे इतना, देखिए सिर्फ नॉट जस्ट यस हिम बट एवरीवन एल्स, इतना कमाल का एक्सपीरियंस रहा है सबके साथ, everyone. I don't want to name because कहीं एक दो रह जाएंगे तो I would feel bad, but everyone, the whole cast was सबने really amazing. इतनी अच्छी एनर्जी, कोई ये नहीं था कि मुझे इससे बेहतर लगना है या मुझे ये बेहतर करना है या पहले मुझे तैयार होना है या मुझे वो जो आप टिपिकल सुनते हो कि ऐसा होता होगा, कुछ भी, nothing even close to Positive. everyone wanted everyone to do good. and I think वो फिर एक प्रोजेक्ट में नज़र आता है जब आपकी इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी और सबका एक मकसद है कि आपने प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतर करना है, तब वो फिर आपको प्रोजेक्ट में निकल के नज़र आता है. सो इट वाज एवरीवन was incredible to be around. Ali bhai, what an incredible director. उन्होंने क्या क्या सबसे करवाया. Yeah, this is my second project with him. तो यू नो एक फैमिली बन गए हम सब, और हम सब ने इतना आपस में एंजॉय किया. हम अंताक्षरी खेलते थे, हम गाने गाते थे, वी यूज्ड टू प्ले गेम्स, amazing conversations with everyone, learned so much from everyone. सब ने इतना सिखाया. Incredible experience. बहुत अच्छा. Was there a scene that you found very difficult to do? अच्छा, most difficult scene has to be the video call. वो जहाँ पे उसको पता चलता है कि सबीका के साथ शादी हो रही है. I think personally for me, because मैं अपने आप को ना, I take myself somewhere when I have to perform. I don't use glycerine. I don't. I try to do it as naturally as possible. तो वो बड़ा एक बहुत draining process है ये, but it's very rewarding. तो मैं अपने आप को, because something had happened in the family as well. तो वो मैं, I took myself there. So you remember that incident? I remembered that incident, which was very close to what happened, and you know, I took myself there, and then I sat with that feeling. I simmered in that feeling, and then when it happened, it was बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं उसके बाद ना, I was like a flash. I was so drained. So you do it for every time you have a scene जिसमें रोने वाला हो? Yeah. ये technique you developed on your own after some time? Yeah, because मुझे लगता है कि ये सबसे रॉ इमोशन आपका निकलता है जब आप अपने आप को वहाँ ले जाते हो. पर्सनली बहुत ड्रेनिंग है, एंड आई वुडंट रिकमेंड इट फॉर एवरीवन इफ यू आर सेंसिटिव. यू बहुत आपको फिर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है निकलना, क्योंकि आप एक पूरे नेचुरल प्रोसेस उस जगह पे जा रहे हैं. क्योंकि देखिए कट हुआ सीन तो वैसे तो कट हो गया, लेकिन आपने अपने माइंड को एक बहुत डेंजरस जगह पे भेज दिया है ना. आपने वो सारी मेमोरीज, सारे इमोशंस सब कुछ पीछे टोकरी से निकाल के सामने लगती है अपने आप के, एंड देन यू हैव टू सिट विद इट, एंड देन यू हैव टू टॉक टू दैट फीलिंग, एंड देन यू हैव टू सेंड दैट फीलिंग बैक. और अगर आपने वो चीज़ प्रोसेस नहीं की हुई, इफ़ यू हैवंट हील्ड फ्रॉम दैट फीलिंग, आप तो गए. क्योंकि आपका जो ही कट हुआ, बाकी एवरीवन इज बैक टू नॉर्मल, एंड देयर आप बैठे हैं वहाँ, और आप बैठे हैं कि ये अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको where do I put this? क्योंकि बहुत इतना सब कुछ आ गया है, कर दिया सीन में, बट अब फीलिंग उधर ही है, तो उसका क्या करना है, उसको किधर, you know, where do I release the feeling? But tell me, दानी, जितना मैं देख रही हूँ ना, every time you come on in a project, आपकी परफॉर्मेंस में मुझे ज़्यादा मैच्योरिटी, ज़्यादा डेप्थ नज़र आ रही है, ज़्यादा फिनेस नज़र आ रही है. सो यू फील दैट it's a बाई प्रोडक्ट ऑफ द होल प्रोसेस, यू नो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू जब आप गुजरते हैं, जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये हो जाता है बिकॉज यू आर लर्निंग. और डिड यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू वर्क ऑन क्राफ्ट? ओह, आई डेफिनेटली मेड अ कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया करने में कि मैंने बोला आई वॉन्ट टू लर्न एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. तो वो जो एक जर्नी है ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, वो तो कॉन्स्टेंट रही है. मैं सेट पे हूँ ना हूँ, आई वांट टू कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या और कर सकती हूँ. तो जहाँ एक कॉन्शियस एफर्ट है, वहाँ फिर ऑफ कोर्स एवरी सेट यू हैव डिफरेंट को एक्टर्स, यू हैव डायरेक्टर्स, यू हैव द राइटर. तो वो हर एक्सपीरियंस के साथ आप वैसे ही पॉलिश होते जाते हो. बट आई एम ऑल्सो वेरी विजिलेंट, आई एम ऑल्सो वेरी on the lookout for new things, picking up something from everyone that I work with, learning different techniques and exploring. मुझे सिर्फ मेरा बेसिक मकसद ये है कि I want to explore myself. I want to learn what I'm capable of, what I can push
how much I can push myself, what I can do, what I can't do, what are my weaknesses, what are my strengths. तो वो सारा कुछ ऐसे I love exploring myself. So do you discuss it with your sister, your mom? You do it at home and then tell them अच्छा मैं ऐसा कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है या ये isolation में होता है process? नहीं, it's a round table conference. Seriously? Yeah, for the 5 of us. Wow. Me, my mom, my dad, my sister and my brother. I love it. हम सारे बैठते हैं, स्पेशली अभी जब मैं रमज़ान में घर पे थी, एवरी सहरी नफ्तारी। खैर थोड़े टाइम बाद हम पक भी जाते हैं कि बस लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, बट आई लव शेयरिंग दिस विद देम, आई लव शेयरिंग माई जर्नी विद देम, आई लव शेयरिंग। मैं उनको सीन दिखाती हूँ एंड आई से दिस इज़ द सीन आई डिड, ये मेरा थॉट प्रोसेस था, मैंने इसको ऐसे प्रोसेस किया, मैंने इसको ऐसे परसीव किया, फिर मैंने इसको ऐसे डिस्कस किया डायरेक्टर के साथ, एंड देन दिस इज़ हाउ आई portrayed this emotion. So it's a very nice, like, also I have isolated moments too, but हमारा एक बड़े मज़े का एक ये तो बहुत ही मज़े की बात है। yeah. I think अपनी फैमिली के साथ अपने काम को डिस्कस कर सके ना, उसका एक मज़ा ही और होता है। Incredible feeling। आपको बॉन्ड ऐसे करता है जिससे उसका, क्योंकि देखिए आपकी एक वाहिद आपकी फैमिली है जो आपको बगैर किसी मकसद के आपको बताएगी, बगैर किसी नेगेटिव फीलिंग, किसी मकसद, किसी मतलब के बगैर आपको, दे विल गिव इट टू यू एज इट इज। यू नो मेरी ममा मुझे कभी कुछ शुगर कोट नहीं करती, ऑल्दो एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ शुगर कोटिंग, शी विल गिव इट टू मी एज crisp as it is, you know, मुझे she will not hold back, and same goes for my dad, and nobody is a bigger critic of mine than my sister. Okay. वो तो she has me on a leash. Oh God, you have it tough coming from everyone, you know. Yeah, तो मतलब it's great for me. I love it. I genuinely appreciate that, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कोई आपको ना बोलने वाला नहीं है ना, तो मतलब आप ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी में मुझे ना बोलने वाले बहुत लोग हैं, और ना मुझे वैसे किसी चीज़ में ना नहीं बोलने को मिलती, बट if I'm doing something which I shouldn't be doing, or if there's a project that I shouldn't do, I get it as it is. And it's a beautiful, हमारा एक बहुत खूबसूरत bond है, no secrets, no hidden everything as is, we talk to each other about everything, we discuss everything, कोई भी project है छोटे से छोटा, I take my dad's advice, मेरे dad बड़े practical से हैं, logical से हैं, मेरी मम्मा ज़रा थोड़ा सा emotional हैं, तो मुझे दोनों का balance मिलता है, मेरी बहन दोनों है, मेरा भाई बहुत लॉजिकल है, वो भी इमोशनल भी है, वो ही लव्स मी सो मच, तो वो सब मुझे ना एक सबका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, वो सब इकट्ठा होके मेरा इनपुट आके एक डिसीजन बनता है, एंड आई थिंक इट्स बीन ग्रेट सो फार फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। Are they happy with मीम से मोहब्बत, या उस पे भी कुछ क्रिटिकल फीडबैक मिली? नहीं, very happy, which is why I'm like कुछ तो होगा। आप लोग मुझे ऐसे you don't let me off the hook so easy. Mama loves it, my khalas, my mamus, everyone, they love it. And the छोटे cousins in your family, they must be going crazy. Yeah, everyone loves it, everyone, क्योंकि I think because मोहित भी है इसमें, तो वो एक connectivity है बच्चों के लिए, एक relatability है, people, kids also are watching, तो वो everyone's loving it, people love it. मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी बात कि उन्होंने एक इस रिलेशनशिप में एक बच्चे की एग्जिस्टेंस को बड़ा नॉर्मलाइज किया है कि yeah, you could be involved with a guy who might have a child or have a presence of a child in his life due to any reason, you know. तो मुझे लगता है वो भी एक थॉट प्रोसेस को चेंज करें, नॉर्मलाइज करें, वरना तो यही होता है कि नहीं, सिंगल फादर या सिंगल मदर, हमारी एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं होती है, देखिए ये तो सुन्नत भी है ना कि this shouldn't matter. This shouldn't matter. So what if they have a child or children? If you love someone, you love them. You love them despite of what they come with. And not to say that you can't work on things, not to say that people have tendencies to be bad and to do bad things. वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन you love someone, उनके बच्चे हैं, नहीं हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं, there are limitations, there are red lines, 100%, लेकिन love is love. And also for Roshi, for a young girl to accept a child, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। देखिए वो तो उसकी एक प्योरिटी है ना, उसको तो उससे मोहब्बत है बच्चे से, वो तलहा का है या वो किसी और का होता, उसको बच्चे से प्यार है, उसको प्यार है बच्चे से, उसके लिए ये मैटर नहीं करता, उसने बोला मुझे मोहित से प्यार है और तलहा से प्यार है, उसके साथ मोहित है, even better. I love them, I want them. Actually उसकी relationship with Mohit is independent of Talha. It's not because it's not because of anyone else. It's not because of Talha, and I think that's a very good factor that the drama has put in. So are there any scripts that you're reading nowadays? Are you going to take a break? क्या हम बहुत जल्द देखेंगे आपको, क्या होगा? I'm just reading stuff right now. You are? Have you been bombarded with scripts after this? या क्या? Yeah, सही है. माशाल्लाह.
Yeah. But I think that makes it all the more difficult. True. Because now you're like, okay, ये भी है हाँ, अब क्या? choices But जैसे मैंने शुरू में बोला, whatever I do next, I want it to scare me. That is when I'll know कि हाँ ये करना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये कैसे करूँगी. So now this is a challenge I want to take, and now I'll do this. लेकिन अभी तक वो ऐसी कुछ गुजरा नहीं है नज़र से. नहीं. Okay. Well, I've come around really good stuff, but nothing that has really truly scared me. So I'm just waiting for that feeling. Will you sing something for us? Every interview I sing something for you. It is a tradition now. It has now become a tradition. Tradition, yeah. Say it? Okay, sure. Because अभी 2 दिन पहले ही वो लास्ट वाली रील मेरी नज़र के सामने गुजरी और एवरी टाइम वो गुजरती है मैं उसको देखती हूँ. Yeah. Like it's such a beautiful thing, you know. So Yeah. इसलिए क्या गाऊँ? जो भी आपका दिल चाह रहा है, preferably a Pakistani one. Acha, this song is it's a beautiful song. It's a Pakistani song. It goes like this. जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती माद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे. जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती माद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे. इसका मुझे इतना ही आता है. Thank you very much. अच्छा. And because Rabia has demanded, I'm going to sing another song. And what better song than the OST itself, which is Baat. Here it goes. मैं दरमियान से गा रही हूँ in no correct sequence. इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है. मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है. बात कहीं उलझे ना, बेकरारी दिल तेरा पागल है, समझे ना. बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना. Nice. Thank you. I love the line वो जो है ना, मुस्कुरा के ना देखिए, हाँ कहीं दिल समझे ना. That's such a nice line. बहुत अच्छा लिखा है. It's beautifully composed and sung. Yeah. But thank you so much for your time, Dhanani. Thank you so much I for know having you were me. really busy with the shoot, but you took out time, and I'm so glad we got the chance to meet up and have Likewise. this conversation. I hope आपके fans खुश हो, Oof, वो love you इतने guys. Thank you so messages- much. आप लोगों ने इतना प्यार दिया. I just want to thank बिल्कुल, everyone. बिल्कुल. Thank you so much. आप लोगों ने इतना प्यार और इतना genuine प्यार, genuine feedback. You guys love Roshi. आप लोगों ने आयत रोशी को accept किया, उसको कर लिया ऐसे. And thank you so much. I love you guys and fans from all over the world, from Bangladesh, from India, from Pakistan, everywhere, all around the world. Thank you so much for all your love. I am here only because of your love and your support. Thank you. It's crazy out there for Meem से मोहब्बत. अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोग रिव्यू करते हैं और वो इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं और कमेंट्स एंड लोग ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं, लाइक अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अभी तो ये उनका प्यार है. हफ्ते क्या होने वाला है, सब बड़े एक्साइटेड हैं. दिस इज गोइंग टू बी सच अ क्रेजी थिंग, यू नो. अब आगे इतनी तो- थ्योरीज हो रही हैं कि क्या होगा इस हफ्ते, यू नो. आगे ये जानने रोशी के है लिए तला, हमें देखिए. कोई हिंट मिलेगा या नहीं? हिंट इज इट रोशी और तलहा शादी की किडनैपिंग के पीछे कौन है? क्या शादी हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हमने. कौन? सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी. आपने कुछ बोला? नहीं, आई ऑल्सो डोंट वांट टू फाइंड आउट बिकॉज आई एम लाइक मैं भी ऐसे बैठी हूँ अब क्या होगा. देखिए यही सस्पेंस तो मजा है बहुत, ना. I'm अब आगे really excited, किसने you know. किया है, किसने क्या किया किया है. है, कौन किडनैप हुआ है, किसने कराया है, आगे क्या होगा, आगे क्या क्या नहीं होगा, होगा, yes. शादी किससे होगी, किससे नहीं होगी, शादी के बाद क्या होगा, ये सब कुछ तो और क्या कितने मजे का ट्विस्ट आया ना कि सारे लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं कि या एवरीवनस ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स लाइक क्या. एंड देयर आर सो मेनी थ्योरीज बाय द वे. आई डोंट नो इफ यू रेड देम. इतनी इंटरनेट पे थ्योरीज हैं कि कुछ 5-6 डिफरेंट टाइप की घूम रही हैं कि ये कौन है शादी की किडनैपिंग के पीछे. लेट्स सी हु इज राइट एंड लेट्स सी हु इज नॉट. Yes. But thank you so much for your time. Thank you so much for having me. We're looking forward to seeing Roshi's journey in Meem se Mohabbat aage. And we wish you all the best. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.